Hello learners, welcome to our YouTube channel. Let's explore geography. Today we are going to start the second part of the chapter population dynamic. We have already discussed the first part of this chapter. Now today we will discuss the second part of this chapter. So आज हम लोग second part start करने जा रहे हैं यही chapter का. We have already discussed up to different factors of affecting population distribution, and today we will start from population growth. What is population growth? So we have to see the meaning of growth. Growth means to increase something, right? What is the meaning of growth? Growth means to increase something. So what is here going to increase? We are going to increase the number of population, but ऐसे ही population increase होगा उसे हम लोग population growth कहेंगे. This is not fair. We have to follow some rule. ऐसे ही population को हम लोग increase हो रहा है या decrease हो रहा है नहीं कह सकते हैं. इसका भी एक formula है. We have to learn this. Population growth equal to birth rate plus immigration minus death rate plus emigration. Immigration, emigration, birth rate, death rate. These four terms we have to understand now. But what is the meaning of birth rate? Birth rate का meaning क्या है पहले हम लोग को ये देखना है. Birth rate means total number of live birth in a particular year, okay, and within 1000% और 1000% पॉपुलेशन. एक कोई भी पर्टिकुलर ईयर में जितने सारे बच्चे का जन्म होता है उसे हम लोग बर्थ रेट कहते हैं 1000 पॉपुलेशन में. ठीक है, ऑल टाइम बर्थ रेट, डेथ रेट, इसको हम लोग 1000 पॉपुलेशन में ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो यही है बर्थ रेट. एंड डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ पीपल, इट मे बी child, it may be mature people, death people in a particular year. year बहुत important होता है क्योंकि each and everybody year has a different number of population, so here you have to mention must. So in a particular year out of 1000% population, ठीक है, 1000% population में कितना सारे people का death हो रहा है वो death rate है. And the two important factor here is immigration and emigration. इमिग्रेशन और एमिग्रेशन का मीनिंग क्या है हम लोग डिटेल में इसको देखेंगे क्योंकि माइग्रेशन हम लोग डिस्कस करेंगे तब हम लोग को डिस्कस करना है. तो मैं पहले यही बोल देती हूँ कि देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ का ऐसा मीनिंग नहीं है कि एक पर्टिकुलर ईयर में 1000 पॉपुलेशन का बर्थ हो रहा है एंड सपोज उसमें से 200 पॉपुलेशन का डेथ हो रहा है, सो 800 पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, ऐसा नहीं है. ठीक है, उसमें हम लोग को और भी क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, इमिग्रेशन इंक्लूड करना पड़ेगा एंड एमिग्रेशन इंक्लूड करना पड़ेगा. देन वी कैन कैलकुलेट द टोटल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर ईयर. ओके, let's see what is immigration and emigration. Immigration and emigration क्या है? To understand immigration we have to at first understand what is migration. What is the meaning of migration? Migration means you can write here that migration means the movement of people from one country to another country or from one particular state to another state, or in a simple word from one place to another place. Okay, suppose you live in a area, suppose you live in West Bengal, but when you will grow up, suppose for a job opportunity, for anything, you move to Delhi. ओके, तुम दिल्ली में मूव कर रहे हो, सो दिस इज योर माइग्रेशन. इट मे बी परमानेंट, it may be temporary, but it cannot be like that from West Bengal to Delhi you have moved for 1 month, you have moved for 6 months, then it will not be called migration. Migration हम लोग सिर्फ कोई एक पर्पस के लिए जा रहे हैं, सपोज हेल्थ चेकअप के लिए जा रहे हैं, वो माइग्रेशन नहीं है. माइग्रेशन मीन्स यू आर गोइंग टू लीव देयर. ओके, इट मे बी 6 years, it may be 4 years, it may be for your whole life also. इसे हम लोग माइग्रेशन कहते हैं. सो माइग्रेशन क्यों पीपल मूव करता है? पीपल कैन माइग्रेट फॉर डिफरेंट रीजन, like for better job opportunities the main option, for also health facility, educational facility, for better living
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये जो सारे रीज़न है, और इसमें से और भी एक रीज़न है फॉर मैरिज। जो गर्ल्स है मेनली इन इंडिया, आफ्टर मैरिज दे मूव, मेनली दे मूव और दे माइग्रेट टू देयर अनदर हाउस। ओके, सो इन लॉज के हाउस में जब वो लोग जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो माइग्रेशन है, क्योंकि दे आर गोइंग देयर फॉर देयर permanently, they are going there to settle permanently. For this reason this also will be called migration, mainly in India or mainly in Southeast एशियन डिफरेंट कंट्रीज हम लोग जहाँ पर ये माइग्रेशन देख सकते हैं, ठीक है। सो यही जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन it may be different types, but here we can discuss in two types. We can divide migration, immigration and emigration. Emi and emi. So in very short trick we can understand this. Students maximum time make it mistake that what is immigration, immigration, ये दो concept में mistake करता है. So हम लोग को आज ये discuss करना है डिटेल में. अगर हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक को अडॉप्ट करके अगर हम समझने की कोशिश करें तो देख सकते हैं इमी जो आई एम लिखा है ना, इसे अगर हम लोग ऐसे लिखें आई एन तो इन माइग्रेशन, ठीक है। अगर हम लोग आई एम को छोड़ के इसे अगर हम लोग ऐसे समझे कि इन माइग्रेशन एंड एमिग्रेशन को ओके ई को मूव करके अगर हम लोग ऐसे देखें ओ यू टी आउट. ओके, सो द फर्स्ट वन विल बी immigration and the second one will be out migration, right? Immigration means in migration. Okay, suppose this is one country, this is another country, suppose this is India and suppose this is Canada. Okay, some people, suppose there are 3 people live, for example I am taking this, and one people then go to Canada. If he will go to Canada, then what will happen? One people will move from here, here extra one people will add. So when people will move from this place, okay, this will be जब यहाँ से जा रहा है, then it will be called out migration or emigration, ठीक है. And when people, and for this country it is gaining extra population or extra people, then it will be called immigration. इमिग्रेशन हो रहा है. क्यों? क्योंकि कनाडा का जो टोटल पीपल्स, सपोज पहले 4 पीपल था, अब उससे और एक ऐड हो रहा है, देन इट विल बी 5 पीपल. सो इट विल बी इमाइग्रेशन और इमिग्रेशन फॉर Canada, but it will be out migration or immigration for India because it is now losing its population. Because population are going to Canada or any developed country. मैं बस एक छोटा एग्जांपल देके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ. So if you will move from some place, suppose you are living here, you are moving to another place, then it will be called immigration. Emigration. Out migration, emigration. And where you are moving to settle permanently, then it will be called, that place it will be called immigration or in migration. In means to coming, right? In means क्या है? In means to entering somewhere. So in migration means coming somewhere and immigration means to adding population. Okay, and emigration means going from somewhere. Okay, minus immigration plus emigration minus. Okay, so now you can understand birth rate. Okay, birth rate plus immigration, दैट मीन्स बर्थ रेट तो है, उसके साथ इमिग्रेशन हो रहा है, दैट मीन्स पॉपुलेशन एक्स्ट्रा आ रहा है, माइनस डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन. जो डेथ रेट से तो पॉपुलेशन जा ही रहा है, डिक्रीज हो ही रहा है, उसके साथ और क्या डिक्रीज हो रहा है? इमिग्रेशन से भी तो पॉपुलेशन डेथ लॉस होता है. कि कभी तुम लोग मैं बोली इमिग्रेशन मीन्स आउट माइग्रेशन, सो इससे भी पॉपुलेशन का डिक्रीज हो रहा है. तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या बोलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर? गेट ए टोटल लूजिंग पॉपुलेशन, टोटल गेनिंग पॉपुलेशन. ठीक है, टोटल गेनिंग से अगर टोटल लूजिंग हम लोग माइनस करें, देन इट विल बी कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ. आई होप दिस इज नाउ क्लियर टू एवरीबडी. ठीक है, अभी ये क्लियर है. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज ओवर पॉपुलेशन एंड अंडर पॉपुलेशन. ओवर मीन्स मोर देन समथिंग and under means less than something. So overpopulation means excess population in a particular geographical
area. Excess means more than optimum or more than standard. So, and more, it is this kind of population is just excess to meet their natural resources. Okay, there are not available natural resources to meet the demand of this kind of population. Like in our country, India is suffering with the problem of overpopulation, because here India has now too much population that it is not possible to meet everyone's demand here, or everyone's need here. That means it is now suffering, our country is now suffering with the problem of over population. पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो सपोज ऑप्टिमम पॉपुलेशन को हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं? ऑप्टिमम पॉपुलेशन को हम लोग कंसिडर करते हैं अवेलेबल नेचुरल रिसोर्स के द्वारा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अवेलेबल नेचुरल रिसोर्स, अगर नेचुरल रिसोर्स कम हो, और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर नेचुरल रिसोर्स के वाइज यहाँ पर पॉपुलेशन होना चाहिए 100, बट यहाँ पर पॉपुलेशन कितना है, सपोज 2 लाख, तो इट विल बी कॉल्ड ओवर पॉपुलेशन. ठीक है, सो इंडिया यही जो प्रॉब्लम है इसमें ही सफ़र कर रहा है. और इतना सारा पॉपुलेशन को इसका फूड, हैबिटेशन मीन्स डिवेलिंग, और हम लोग क्या कह सकते हैं, और भी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड होता है, मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ये सारे डिमांड फुलफिल करना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन? डिप्रेशन और ओवर यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्स. ज़्यादा करके हम लोग नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करें. वी आर कटिंग डाउन फॉरेस्ट एंड कन्वर्टिंग इट इनटू अ एग्रीकल्चरल फील्ड. So we are now depleting natural resources, our forest resources. Okay, we are also depleting river water. We are extracting water. We are extracting different types of ores from mines excessively. So these are the example of depletion of or over uses of natural resources. Unemployment, इतने सारे people को काम देना possible नहीं होता है. That's for this reason India is suffering from the problem of unemployment. Disbalance between demand and supply. यहाँ पर सप्लाई से ज़्यादा डिमांड है, सो क्या करना पड़ रहा है, इंडिया हैज़ टू import different types of goods from another countries, and for this reason India is suffering from loan or debt, different kinds of जो उधार करना पड़ रहा है इंडिया को दूसरे देश से. क्यों? क्योंकि अपने देश का जो पॉपुलेशन का डिमांड है उसको नीड जो है और जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो इतने सारे रिसोर्स अवेलेबल है ही नहीं. एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जो मैं बोल रही हूँ अभी, हम लोग क्या करते हैं, वी आर कटिंग डाउन फॉरेस्ट ट्रीज एंड वी आर नाउ इट कन्वर्टिंग इनटू एग्रीकल्चरल लैंड. फॉर दिस रीजन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एक्सटिंक्टिंग फ्रॉम इंडिया, एंड नाउ वी आर लॉसिंग आवर बायोडाइवर्सिटी. इट हार्म्स बायोडाइवर्सिटी. ये बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. इसके लिए फूड चेन, फूड वेव सारे यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है इसके लिए, ओवर पॉपुलेशन के लिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज अंडर पॉपुलेशन. When number of population is less than optimum population or it does not meet the demand of available natural resources in a particular area. यहाँ पर से इसका ऑपोजिट हो रहा है, ओवर पॉपुलेशन का जस्ट ऑपोजिट है अंडर पॉपुलेशन. यहाँ पर क्या है, नेचुरल रिसोर्स जो है वो फुलफिल करने के लिए यहाँ पर पॉपुलेशन अवेलेबल नहीं है, और ऑप्टिमम पॉपुलेशन से भी कम पॉपुलेशन है, देन इट विल बी कॉल्ड अंडर पॉपुलेशन. अंडर पॉपुलेशन का भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, लाइक लैक ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अब देखो, ओवर पॉपुलेशन में इट इज गोइंग ऑन ओवर यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ इन केस ऑफ अंडर पॉपुलेशन इट इज हियर लैक ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिकॉज देयर पीपल आर एब्सेंट. पीपल वहाँ पर है ही नहीं को जो नेचुरल रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकता है. एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज, हियर इट इज अनएम्प्लॉयमेंट इट इज अ प्रॉब्लम, हियर इट इज एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज. एम्पल मीन्स सफिशिएंट जॉब अपॉर्चुनिटीज, मोर देन एक्स्ट्रा, एक्सेसिव जॉब अपॉर्चुनिटीज. लो लेवल ऑफ पॉल्यूशन, हियर पॉल्यूशन इज टू मच इन केस ऑफ ओवर पॉपुलेशन में, बट इन केस ऑफ अंडर पॉपुलेशन में हम लोग देख सकते हैं कि पॉल्यूशन का लेवल बहुत कम है, क्योंकि पीपल नहीं है. तो अगर यहाँ पर ह्यूमन बींग ना हो तो पॉपुलेशन कौन करे, पॉल्यूशन कौन कर सकता है, तो इसीलिए पॉल्यूशन का जो लेवल है वो भी कम होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. composition, main population composition is consist of 3 part.
age sex pyramid, rural urban divide, and literacy level. One by one we have to understand this. These are the three. There are so many also few composition of population, but these are the major composition of population. ये population के कुछ major composition है. इसमें से सबसे ज़्यादा important है age sex ratio and literacy level. Age sex ratio, age ratio and sex ratio, by combining these two term we can get age sex ratio. age मतलब different जो एज ग्रुप है, सपोज फ्रॉम 0 to 3, ये एज में कितने सारे पॉपुलेशन है, 3 to 6, 6 to 9. If I will divide this into different range and we are trying to count how many numbers are people or how many numbers of population are available from in this particular range of population, then it will be called age ratio. ठीक है, तो ये जो सारे एज का रेंज है इसमें कितने सारे पॉपुलेशन है कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री में, नॉट ओनली इन इंडिया, कोई भी कंट्री में, देन इट विल बी कॉल्ड एज रेशियो. एंड सेक्स रेशियो क्या है, सेक्स रेशियो मीन्स नंबर ऑफ, सेक्स को हम लोग टू टाइप्स में मेजरली डिवाइड कर सकते हैं. टू टाइप्स मीन्स मेल एंड फीमेल. ठीक है, सो मेल, हाउ मेनी मेल पॉपुलेशन आर अवेलेबल इन particular state or in a country, and female population, how many female populations are present or available in a particular state or country. ठीक है, by combining this age sex ratio we can get, and we can get also this pyramid जिसको हम लोग कहते हैं age sex pyramid. ठीक है, अब देखो सेक्स रेशियो क्यों इम्पॉर्टेंट है. इंडिया में हम लोग को पता ही है कि फीमेल पॉपुलेशन का जो नंबर है वो कम होता है. ठीक है, डिफरेंट रीज़न है इसका, different types of superstition, economical factor, social factors are here behind the reason. इसके पीछे बहुत सारे सोशल इकोनॉमिकल सुपरस्टिशन भी है, ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट है. तो अगर हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग 2001 सेंसस को देखें, वी कैन गेट दैट according to 2011 the latest still now 2021 census data has not been published still now, so we have to consider about 2011 census data. So 2011 census data में हम लोग क्या देख सकते हैं कि we can see that if there is 1000 male population, so now if it is 1000 male population, then it will be 940 female population. So you can get here 60 पॉपुलेशन कम है यहाँ पर, इक्वल तो नहीं है, 60 पॉपुलेशन फीमेल का कम है. सो दिस इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम दिस लो सेक्स रेशियो. तो लो सेक्स रेशियो और हाई सेक्स रेशियो क्या है, अगर जो 1000 पॉपुलेशन को अगर हम लोग कंस्टेंट देखें तो अगर मेल पॉपुलेशन से फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा हो, देन इट विल बी कॉल्ड हाई सेक्स रेशियो. एंड इफ़ number of female population is less than male population, then it will be called low sex ratio. ठीक है, इंडिया में मैक्सिमम स्टेट्स है जहाँ पर लो सेक्स रेशियो देख सकते हैं, बट इसमें से हरियाणा इज द स्टेट where we can see the lowest sex ratio, जहाँ पर lowest sex ratio सबसे कम है. It is about 762 out of 1000. ठीक है, 1000 में कितना है, ओनली 762. इतने सारे पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन कम है. क्यों, क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू डिसरेस्पेक्ट एनी रिलीजन, बट आई हैव टू से दिस, मैं कोई भी रिलीजन को डिसरेस्पेक्ट करना नहीं चाहती हूँ, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि हम लोग का जो कंट्री है यहाँ पर एक सुपरस्टिशन है, वी want male population more than female population because we are considering female population as a burden in our society. हम लोग female population को burden समझते हैं. ठीक है, and we also think that कि अगर female population का birth हो, we have to give too much money in their marriage. So marriage में बहुत सारे पैसा खर्च करना पड़ेगा. And our male population is the most important population because he or they will carry our generation, or he or they will carry or progress our generation. जनरेशन हो और फैमिली को हो, वो आगे लेके जा सकता है. फीमेल पॉपुलेशन ये नहीं कर सकता है, इसीलिए सेक्स रेशियो यहाँ पर कम है. ओके, और भी बहुत ज़्यादा रीज़न है, मैं यहाँ पर डिटेल और डिस्कस नहीं कर रही हूँ. इसके लिए क्या होता है कि फीमेल पॉपुलेशन के तुलना में मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है. बट केरला को अगर हम लोग एग्जाम्पल की तरफ ले, वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हाई सेक्स रेशियो. देन मीन्स दैट
मेल फीमेल पॉपुलेशन इज मोर देन मेल पॉपुलेशन, ठीक है। और ये भी एक देखा गया है एक्सपेरिमेंट में, दोज कंट्रीज और दोज स्टेट्स विच आर सफरिंग फ्रॉम लो सेक्स रेशियो दे आर नॉट डेवलप्ड। जो सारे स्टेट है जहाँ पर मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है फीमेल से, ऐसे हरियाणा के जैसे ज़्यादा डिफरेंस है, वो सारे स्टेट्स डेवलप नहीं है, इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है। और जो सारे स्टेट्स में फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है, दीज स्टेट्स आर मोर डेवलप्ड, क्योंकि अगर एक लिटरेट मदर हो, she will never want that her son or daughter will be illiterate। अगर कोई भी माँ, अगर कोई भी फीमेल पॉपुलेशन, अगर कोई भी मदर लिटरेट हो, वो ऑल टाइम चाहता है कि उसका भी बच्चा लिटरेट ही होगा, इलिटरेट नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि फादर नहीं चाहता है, फादर भी चाहता है, लेकिन ऑल टाइम हम लोग किसके कांटेक्ट में रहते हैं, मदर के कांटेक्ट में मैक्सिमम टाइम हम लोग रहते हैं। सो मदर अगर लिटरेट हो, सो ऑल टाइम वो चाहते हैं कि उसका डॉटर और जो सन हो वो भी लिटरेट हो। इसीलिए जहाँ पर जो फीमेल लिटरेसी ज़्यादा है और फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हम लोग ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर जो एज 6 पॉपुलेशन, एज 6 जो पिरामिड है, हम लोग एज एंड सेक्स क्यों कहा जाता है, मैं अगर जूम करके दिखाना चाहती हूँ। We can divide into two sectors. On the left hand side we are showing here female, and right hand side we are showing here male population according to age group. These are the age group, ठीक है। एज ग्रुप के वाइज अगर हम लोग देखें कि परसेंटेज कितना है, फीमेल पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है, मेल पॉपुलेशन का। इन अ सिंगल डायग्राम वी कैन डिस्कस बोथ अबाउट फीमेल एंड मेल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप। दैट मीन्स इन अ सिंगल डायग्राम वी कैन शो distribution of male population and female population, that means their percentage in a single diagram में हम दिखा सकते हैं। ये जो पिरामिड है इंडिया की पिरामिड है, जिसमें हम लोग एक साथ दिखा सकते हैं कि मेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन, इसका परसेंटेज वाइज, एज वाइज कितना हो सकता है। एंड पॉपुलेशन पिरामिड डिफरेंट शेप का हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ऐसे ट्रायंगुलर हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि पॉपुलेशन पिरामिड अगर ऐसे ट्रायंगुलर है, ये ट्रायंगुलर का मतलब क्या है, ये ट्रायंगुलर का मतलब होता है कि पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, देखो फर्टिलिटी दैट मीन्स बर्थ रेट ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए बेस ज़्यादा वाइड है। बट अगर हम लोग ट्रायंगुलर पॉपुलेशन पिरामिड शेप देखें तो वहाँ पर क्या देख सकते, उसका मीनिंग क्या होगा। ट्रायंगुलर शेप का मीनिंग होता है पॉपुलेशन इज ग्रोइंग स्लोली एंड स्टीडीली, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसे ह्यूज रेट में नहीं बढ़ रहा है जैसे ये हम लोग इंडिया में देख सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। ट्रायंगुलर शेप का मतलब पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग स्लोली बट स्टीडीली, ठीक है। और भी डिफरेंट टाइप का देख सकते हैं, बेल शेफ्ट देख सकते हैं जो डेवलप कंट्री को इंडिकेट करता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप का पॉपुलेशन पिरामिड हम लोग देख सकते हैं एंड ईच हैज़ इट्स ओन मीनिंग। अगर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें रूरल अर्बन डिवाइड, रूरल में हम लोग मेन क्या देख सकते हैं, रूरल में हम लोग मेन देख सकते हैं एग्रीकल्चर एंड अर्बन में इंडस्ट्री। सो रूरल अर्बन डिवाइड मीन्स रूरल एरिया में मैक्सिमम पीपल दे आर एंगेज इन एग्रीकल्चरल वर्क, एंड एग्रीकल्चर वर्क में बोथ वी कैन सी मेल एंड फीमेल, एंड इंडस्ट्रियल वर्क में भी देख सकते हैं। बट इन बोथ दिस केस वी कैन सी नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इज मोर देन फीमेल, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल वर्क है उसमें फीमेल पॉपुलेशन भी रहती एंगेज है बट लेस देन मेल पॉपुलेशन। रूरल एग्रीकल्चरल फील्ड में भी ऐसा ही है। लिटरेसी लेवल, लिटरेसी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। लिटरेसी लेवल मीन्स हु आर लिटरेट, एट फर्स्ट यू हैव टू नो हु आर लिटरेट। लिटरेट आर द पीपल हु कैन रीड एंड राइट, बोथ रीड एंड राइट, लिख भी सकता है पढ़ भी सकता है, ओनली रीड कर सकते हैं, ओनली अपना नाम लिख सकते हैं, देन वी कैन नॉट से दैट ही इज और शी इज अ लिटरेट। सो लिटरेसी क्या है, लिटरेसी इज द एबिलिटी, ये एक एबिलिटी है टू रीड और राइट समथिंग, इसका हम लोग लिटरेसी कहते हैं, ठीक है। लिटरेसी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लिटरेसी लेवल अगर डेवलप हो इट कैन ऑल्सो लीड टू डेवलप economic development, social development, okay, and it can decrease fertility rate और बर्थ रेट को भी डिक्रीज कर सकता है, क्योंकि अगर एक पेरेंट लिटरेट हो तो वो लोग ये जो ह्यूज जो पॉपुलेशन और ओवर पॉपुलेशन का जो प्रॉब्लम है दे कैन अंडरस्टैंड एंड दे कैन कंट्रोल देयर फैमिली मेंबर और दे कैन कंट्रोल नंबर ऑफ बर्थ, राइट, कंट्रोल कर सकता है। सो पॉपुलेशन डिक्रीज होगा, ठीक है। एंड ऑल्सो
हेल्थ फैसिलिटी डेवलप होगा, मेडिकल फैसिलिटी, देयर एजुकेशनल फैसिलिटी डेवलपमेंट होगा, एंड जॉब, बेटर जॉब वो लोग चूज़ कर सकते हैं. सो यही जो सारे कुछ डिफरेंट टाइप का बेनिफिट है लिटरेसी लेवल का. लिटरेसी लेवल अगर हाई हो तो इट विल प्रोग्रेस अवर कंट्री, अवर डेवलपमेंट, एवरीथिंग. ठीक है, तो आज ये जो चैप्टर है population dynamic, it has now completed. Okay, and I have considered that I should take a class for important question. मैं एक और एक पार्ट बनाऊंगी यही चैप्टर में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यही चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में. सो स्टूडेंट प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज पॉसिबल. हम तुम लोग जितने हो सके इसको शेयर करो. प्लीज़ लाइक दिस, शेयर दिस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड you can go to the comment section, you can give your valuable comment also. Bye everyone.